नरोत्तम मिश्र जी स्वागतम। 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 माननीय मिश्र जी स्वागतम। बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद যোগ্যতা जिंदाबाद 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 माननीय नरोत्तम मिश्र जी स्वागतम। माननीय नरोत्तम चलो आगे चलो ना दादा आगे चलो অনুষ্ঠান আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে একবার সুযোগ দিন, পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটাই পাল্টে যাবে। মঙ্গলবার সকালে চায় পে চর্চায় যোগ দিতে এসে রাঢ়বঙ্গবাসীর কাছে এমনটাই আবেদন রাখলেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। তিনি বলেন, এ রাজ্যে ভয় দেখিয়ে বিজেপিকে দমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যা কোনোদিনই সম্ভব নয়। মমতা ব্যানার্জির বহিরাগত তত্ত্বকে খারিজ করে দিয়ে তিনি জানান, বাংলাদেশের নায়ক নায়িকাদের নিয়ে এসে বাংলায় প্রচার চালান দিদি, আর দেশে থেকে দেশেই প্রচারে আসতে পারবো না। গরিব মানুষের জন্য কেন্দ্রের চালু করা প্রকল্প এ রাজ্যে চালু হতে দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্যের মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বজন পোষণেই বঙ্গে মাফিয়া রাজ বেড়ে চলেছে। কেন্দ্রের নয়া কৃষি বিল নিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে এ রাজ্যের সরকার। মমতা সরকারের কুশাসন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করা, এটাই বিজেপির মূল লক্ষ্য। লোক আর ভারতীয় জনতা পার্টির দুর্গাপুর বিজেপির পক্ষ থেকে যায় চায় পে চর্চার অনুষ্ঠান। দুর্গাপুরবাসীর কাছে, বিজেপি কর্মীদের কাছে সৌভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষের অন্যতম রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, সেই মধ্যপ্রদেশের গৃহমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মিশ্র মহাশয় আমাদের চায় পে চর্চা অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। সেই জন্য জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে, দুর্গাপুরবাসীর পক্ষ থেকে ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। উপস্থিত আছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য বিজেপির সম্পাদক বিবেক শঙ্করজি এবং উপস্থিত আছেন রাঢ়বঙ্গ জোনের কনভেনর, বাঁকুড়া জেলার প্রাক্তন সভাপতি অ্যাডভোকেট মাননীয় পার্থসারথী কুন্ডু মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের জেলার সাধারণ সম্পাদক সুদীপ চক্রবর্তী, জেলার দুই সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত, সোমনাথ চ্যাটার্জি, আমাদের দুই বিধানসভার কনভেনর রজত মল্লিক, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, মহিলা মোর্চার নেত্রী চন্দ্রমল্লিকা ব্যানার্জি সহ দুর্গাপুর বিজেপির কার্যকর্তা বন্ধুগণ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, প্রশাসন, পথচলতি মানুষ সকলকে জানাই দীপাবলি, ছট পুজোর, নবরাত্রি পুজোর আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও নমস্কার। আজকে চায় পে চর্চার যে মূল অনুষ্ঠান, তার মূলত কারণ আজকে যিনি উপস্থিত হয়েছেন, আমরা জানি সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। আজকে নির্বাচনের সামনে কেন্দ্র নেতৃত্ব রাঢ়বঙ্গ জোনের জন্য আমাদের নরোত্তম মিশ্রজিকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি এই রাঢ়বঙ্গ জোনের 7টি জেলায় বিভিন্ন এলাকাতে ঘুরছেন, এলাকার পরিস্থিতি দেখছেন, আমাদের কথাবার্তা বলছেন, মানুষের কথাবার্তা বলছেন, প্রেস মিডিয়াতে কথাবার্তা বলছেন। সেজন্য আমরা পেয়েছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করবো না, কারণ তার ইতিহাস আছে।
আদান করে যাবেন, এখান থেকে বীরভূম নেবেন। তাই সময় খুব সংক্ষিপ্ত, তাই আমি কিছু না করে আমার বক্তব্য দীর্ঘদিন আপনারা শুনেছেন, আগামী শুনবেন, গ্রামে এলাকার জানুক। তাই আমি বিবেক শঙ্করজিকে একটা কথা বলে আজকে অনুষ্ঠান শুরু করতে অনুরোধ করছি। আমার রাজ্য সম্পাদক বিবেক শঙ্করজি। माता की दोनों हाथ की मुट्ठी भूज करके ताकत के साथ भारत माता का जयघोष करना, ये विरोधियों को भी पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितनी मुस्तैदी से आगामी 2021 के विधानसभा चुनावों में तैयारी के साथ आ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज इस चाय की चर्चा पे आसनसोल के संघर्षशील अध्यक्ष लखनदा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हो रहा है। उनके पूरे टीम के साथ दुर्गापुर उत्तर और पूर्व के पश्चिम और पूर्व के केंद्र पे मैं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी विधायक है, 4 बार ग्वालियर से डबरा विधानसभा से और 3 बार दतिया से, 16 वर्षों से सरकार में मंत्री है। और इस बार मध्य प्रदेश की जो सरकार आई 1.5 साल बाद, उसके चाणक्य रणनीतिकार उस पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की जो कुशासन है, उस किले को भेजने के लिए इस रणनीतिकार की जरूरत माननीय नरेंद्र मोदी जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री अमित शाह जी, नड्डा जी ने इनको राणबंद जोन का प्रभारी बना करके जो 57 विधानसभा सीट है, उन सीटों में रणनीति करने के लिए और 57 में से 57 सीट जीत करके आए। पार्टी का ये लक्ष्य निर्धारित है, उसके लिए माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को यहां पे भेजा गया। नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री के साथ जेल मंत्री भी है, कानून मंत्री भी है और मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चलता है उसके संसदीय मंत्री भी हैं। 4 मंत्रालय का प्रभार है और पश्चिम बंगाल में अब हम सबों के बीच में रहने वाले हैं। हर जनता के घर, हर कार्यकर्ताओं के घर, हर मजलूमों के घर, हर पीड़ितों के घर जाने वाले हैं। और जो भी पश्चिम बंगाल में संतरास चल रहा है, तुष्टिकरण की नीति चल रही है, उसके प्रतिवाद में जोरदार कार्यकर्ताओं के साथ आवाज उठा करके 2021 का जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए हमारे बीच माननीय नरोत्तम मिश्रा जी। जय श्री राम, जय श्री राम, मिश्रा जी स्वागतम, नरोत्तम मिश्रा जी स्वागतम, भारत माता की। एक 2 नारे लगते हैं, आपको पता होगा। ये 2 नारे ही आपको फर्क बता देंगे। तृणमूल वाले ममता माता की जय बोलते हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं। ये 2 फर्क है वैचारिक। मैं मध्य प्रदेश से आया हुआ, जय कमलनाथ बोलते हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं। ये 2 फर्क है। वहां व्यक्ति की पूजा होती है, हम राष्ट्र की आराधना करते हैं, हम राष्ट्र की पूजा करते हैं। और ये जो आसुरी ताकतें हैं, आसुरी शक्तियां हैं, ये हमेशा देश को तोड़ने का काम करते हैं। ये तुष्टीकरण की नीति देश को तोड़ने की नीति है। जो ममता जी पूरे देश में फैलाती है। पिछले चुनाव में बहुत सारे दल, 35-36 दल ममता जी ने कलकत्ता में बुलाए थे, सबसे नेता खड़े कर लिए। पीछे जितने फूके हुए बल्ब थे ना, जो रोशनी नहीं कर रहे थे, उन सबकी एक कतार लगा ली थी उसने, सारे फूके हुए बल्बों की। आज मैं फूके हुए बल्ब इसलिए कह रहा हूं कि एक भी रोशनी नहीं दे पाया उनमें। एक बात आप सब जरूर सोचना, चाय पे चर्चा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करते, चाय से हमारी पार्टी का गहरा नाता है।
देश का हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, वो चाय बेचने वाले थे और इसलिए चाय से हमारा नाता तो बड़ा दिली है। जुनाब जग्गी बैठे हैं, उनने कहा कि लखनऊ में के चाय पे चर्चा करेंगे, मुझे सत्य की भी घूम घूम के चर्चा करते हैं। इसलिए हमें इस चाय चर्चा में ये बात आपके मन तक पहुंचानी है, जीवन तक पहुंचानी है कि मित्रों, के बाद से अभी तक पिछले शुरुआत के कांग्रेस के शासन को जोड़े राज्य है जो 50 साल से इस कलकत्ता पर राज कर रही है। 50 साल हो गए और 50 साल में ये हमेशा गरीबी दूर करने की बात करते हैं। हार आता है और कहता है हम गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे, कमजोर की लड़ाई लड़ेंगे। और क्या कारण है कि इन 50 सालों में बंगाल हमारा कमजोर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया, मजदूर और मजबूर होता चला गया? क्या कारण था? आपने हर चुनाव में बात की कि आप परिस्थिति को बदल देंगे। 50 सालों में क्यों नहीं बदली? किसने रोका था? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ये कलकत्ता, ये पश्चिम बंगाल, इसने हमेशा देश को नेतृत्व किया है। 34 साल वामपंथी रहे, 10 साल ममता जी हो गए, 3410 44, तो बाकी कांग्रेस और राष्ट्रपति शासन। 50 साल ऐसा होता है। इन 50 सालों में क्या कारण था जिस कलकत्ता ने देश का नेतृत्व किया? जिस कलकत्ता ने रामकृष्ण परमहंस से लेकर स्वामी विवेकानंद ने देश को ज्ञान दिया, देश को दिशा दी, उस पश्चिम बंगाल की दशा खराब हो गई। क्या कारण था? ये आप सबको सोचने का विषय है। सिर्फ और एक ही कारण है, तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति में इन्होंने पूरे के पूरे कलकत्ता का विकास रोक दिया और विनाश की तरफ ले गए। पूरे बंगाल का, पश्चिम बंगाल का विकास रोक दिया इन्होंने। और इसलिए ये आप सबके शोध का विषय भी है, आप सबके सोच का विषय भी है। इस पर शोध करें। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, आप वहां की स्थिति देखो। आपके पीछे था मध्य प्रदेश, आपके पीछे था गुजरात। आप पिछले इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे कि जीडीपी रेट क्या थी या विकास की दर क्या थी। आप ऐसे नहीं समझेंगे तो ऐसे समझेंगे। पर कैपिटा इनकम क्या थी और आज पश्चिम बंगाल की पर कैपिटा इनकम क्या है और गुजरात की और मध्य प्रदेश की क्या है, ये सोचना चाहिए हम सबको। ये कोई पश्चिम बंगाल जो सबको रोजगार देता था, आज हमारे लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में क्यों जा रहे हैं? आज जब पलायन हुआ मजदूरों का तो सबसे ज्यादा मजदूर पश्चिम बंगाल के वापस आए। क्यों गए वो बाहर, जहां पर जब इतनी संपन्नता है, इतने उद्योग थे? तो आज गुजरात से हमें सबक लेना चाहिए। हम मध्य प्रदेश से आए, हम मध्य प्रदेश को बता रहे हैं कि कांग्रेस ने हमें बीमारू प्रदेश दिया था। सड़क में गड्ढा था या गड्ढों में सड़क थी या गड्ढा में गड्ढा था, पता ही नहीं चलता था। आज बढ़िया सड़कें, बढ़िया बिजली है, 24 घंटे गांव को हम बिजली दे रहे हैं। शहरों की तो बात चली क्या, हम विकास कर रहे हैं, ये पिछड़ रहा है, ये देखना होगा। आप आमजन हैं, इसलिए मैं आह्वान करने आया हूं कि सबको देखो, सबको देखा बार बार, भाजपा को एक बार, आप सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता कर देखो। एक बार आप मन बनाओ, आपने अनेक बार इन लोगों को जिताया, ये वादे करते रहे और एक भी वादे पर खड़े नहीं उतरे। भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। हम बचपन से नारा लगाते थे कि जहां हुए बलराम मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। आप बताइए, धारा 370 हमने सरकार में आते ही हटाई कि नहीं हटाई? इसी बार की बात कर रहा हूं मैं, पीछे नहीं ले जाऊंगा इतिहास।
35 से हटाई के नहीं कश्मीर के अंदर। हम कहते थे टकल तराक हटाएंगे, आपको हटा के दिखाया। सीए लाएंगे, लाके दिखाया। हम कहते थे कि जहां सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। देखिए मंदिर बनना प्रारंभ हो गया कि नहीं हो गया। जो कहा तो करके लिया। ये पश्चिम बंगाल की सरकार तो गरीबों का जो पैसा केंद्र सरकार का आता है वो नहीं पहुंचने देती। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपया पर व्यक्ति के इलाज के लिए आयुष्मान योजना में दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वो योजना लागू ही नहीं। टिकट वेंडर जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए 10-10 हजार रुपया देने का प्लान लागू किया। पूरे देश के अंदर हर प्रदेश में लागू हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया। आखिर क्या कारण है? गरीबों की योजना, कमजोर की योजना, मजदूर की योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होती। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी ने किसान को दी। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 4,000 रुपये जोड़ दिया। 10,000 रुपया हम मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक किसान को दे रहे हैं। मैं जो बातें बोल रहा हूं आप नेट पे जाके इसका पता भी कर सकते हैं। आजकल कहीं जाना नहीं होता। अपने गूगल गुरु से कहें, गूगल से कहें, नेट से कहें, वो बताएगा कि ये बोल के गया है, ये सच है कि नहीं है। हमने 10,000 रुपया कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये 10,000 रुपया किसान को नहीं मिल रहा। वो 10,000 रुपया टिकट वेंडर का मजदूर को नहीं मिल रहा। वो 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना का गरीब को इलाज के लिए नहीं मिल रहा। ये केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का नाम बदल के लाभ लेना चाहती है। पूरे प्रदेश के अंदर माइनिंग माफिया सक्रिय है, शराब माफिया सक्रिय है, भू माफिया सक्रिय है। परिवारवाद का पूरा मुड़म्मा ममता बनर्जी के ऊपर छाया हुआ है। वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है। मुझे नहीं पता कितनी मां पेट है और कितनी बड़ी भूख है कि भ्रष्टाचार खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। हर बार मध्य पश्चिम बंगाल के अंदर भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। चिट फंड का पैसा गरीबों से इकट्ठा कर करके बड़े बड़े उद्योगपति बन गए चिट फंड की कंपनियों वाले, लेकिन चिट फंड का पैसा लौटाया नहीं जा रहा। हमने मध्य प्रदेश के अंदर सारे चिट फंडियों पर केस रजिस्टर करके पैसा वापसी की कार्रवाई कराई और मजदूरों को पैसा दिलवाया। क्या यहां नहीं हो सकता है? मैं जो बात कह रहा हूं कि हमने दिलवाया कि नहीं दिलवाया, आप जाओ और देखो और पूछो। मध्य प्रदेश के अंदर गूगल पे जाओ कि केस रजिस्टर हमने करे, मालिकों पर केस रजिस्टर कर दिए। मजदूर भाइयों, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। हर समस्या का हल खिलता हुआ कमल। सबको देखा बार बार, भाजपा को एक बार। अगर आपने एक बार देख लिया, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इतने मजदूरों का पैसा ये चिट फंड की कंपनियों ने खाया है। आपको घर आकर एक पैसा वो वापस करके जाएंगे, अथवा वो लोग जेल के शीशों के पीछे होंगे। हम किसान को 10,000 रुपया जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का है वो दिलवाएंगे। हम जो आयुष्मान योजना का लाभ है वो गरीब को 5 लाख रुपया का दिलवाएंगे। इतना 3 साल से ये योजना बंद है। एक गरीब को 15-15 लाख आ गया होता अभी उनके खातों में। और इसलिए ये अवसर है आपके पास। ये अवसर बहुत कम आता है कि जब हम अपने एक वोट से गरीब की मदद करेंगे, कमजोर की करेंगे, मजदूर की करेंगे, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की करेंगे, महिलाओं के सम्मान की करेंगे। उस एक वोट से हम राष्ट्र की आराधना करेंगे। ये महान यज्ञ है पश्चिम बंगाल के साथियों, पूरे देश की निगाह कि आपका निर्णय क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले कई बार इन लोगों को जिता चुके हो और देख चुके हो। इन सबको आपने जांचा परखा है। इसलिए मैं प्रार्थना करने आया हूँ। एक भक्त की है अर्जी, मुदगर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं आपकी मर्जी पर छोड़ता हूँ, आपके सोच के लिए, आपके सोच के लिए। लेकिन प्रार्थना है कि चाय की चर्चा जब सार्थक होगी जब आप अपने साथ में बाकी लोगों को मोटिवेट करके कमल की तरफ बढ़ाएं, भाजपा की तरफ बढ़ाएं, मोदी जी की तरफ बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। क्या भाजपा अगर यहाँ पर क्षमता पर आएगी तो क्या यार देश धर्म का नाता है। गाय स्वाभाविक रूप से हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में पूजनीय मानी गई और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में वो कानून लागू किया है। निश्चित रूप से पार्टी उस पर विचार करेगी।
लाभ जिहाद के ऊपर भी आप लोग कानून बनाए हैं। लव जिहाद के ऊपर हमने कानून ला रहे हैं और जो लोग बलपूर्वक, जो लोग बहलाकर, जो लोग फुसलाकर, जो लोग लालच देकर, प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा लेते हैं, हमारी छोटी छोटी नाबालिग बेटियों की शादी कर लेते हैं, उसके बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन को मजबूर करते हैं, हम मध्य प्रदेश में कानून ला रहे हैं। इसमें 10 साल का कठोर कारावास उनके लिए है, जो लोग भी ऐसा करेंगे। जो लोग इनका सहयोग करेंगे उन्हें भी 10 साल का कठोर कारावास है। जो मौलवी, पादरी, गुरु इस तरह की शादी कराएंगे 5 साल का कारावास उनको भी है। ऐसे हमने उसमें अनेक प्रावधान नए रखे हैं। आप लोग बाहर से आए हुए हैं, आप लोग बहिरागत है, आप लोग का बहिरागत गुंडा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब मैं 30 साल से विधायक हूँ, 16 साल से मंत्री हूँ, अगर मैं गुंडा हूँ तो इससे ममता जी की सोच समझ में आती होगी। मेरे ऊपर कोई भी एक भी केस विचाराधीन नहीं है। और अगर हम बाहर के हैं तो वो तो बांग्लादेश के हीरो हीरोइन को बुलाती है प्रचार करने के लिए, वो देश के अंदर के। हम लोग देश के हैं तो देश से बाहर के हो गए क्या? और वो बांग्लादेश से आते हैं। वो ममता जी जो लाए माने ना खाता ना वही, जो ममता कहे सो सही, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा, अंदर क्या है बाहर क्या है वो सब कुछ पहचानती है। बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर आप लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है पूरा का पूरा बंगाल का। असामाजिक तत्वों के आधार पर ममता जी चुनाव लड़ रही हैं। अभी तक हमारे 124 कार्यकर्ता काल कवलित हो गए। डराकर और धमकाकर वो भाजपा को दबाना चाहती हैं। मैं उनको आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि शेर के बच्चे अगर सियारों से दहशत खाएंगे, सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। ये डरने वाले नहीं है, ये मोदी जी के अनुयायी हैं, जो वैश्विक नेता है। आज विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व तो जिस पार्टी के पास है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राड बंगाल की स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया गया आपको 57 सीट के लिए, क्या इशू होगा चुनाव में लड़ने के 2000? मैं स्पेशल कुछ भी नहीं हूँ, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में जिला अध्यक्ष जी का, विवेक जी का सहयोग करने के लिए आया हूँ। मैं नेतृत्व करने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन चुनाव में इशू क्या होगा आप लोगों का जब लड़ेंगे, क्या इशू होगा? अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ये हमारे मूल इशू हैं। ममता बनर्जी के कुशासन को उखाड़ के फेंकना, राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में पश्चिम बंगाल को जोड़ना और पश्चिम बंगाल का विकास करके पुनः इसको शीर्ष की ओर ले जाना। बार बार ममता बनर्जी आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य है उन लोगों को जो सहायता मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा है, केंद्र की ओर से जो सहायता दे रहे हैं वो तो लागू कर नहीं रही। वो पहले इसका जवाब लें कि आयुष्मान योजना यहाँ पर लागू क्यों नहीं की, जो सिर्फ गरीब के लिए ही थी। किसान सम्मान निधि जो मध्य प्रदेश में 10,000 मिल रही है किसान को, वो यहाँ क्यों नहीं मिल रही है, ये तो बताएं वो पहले। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातों के बतासे फोड़ना चाहती है, काम नहीं करना चाहती है। विषयांतर करने में उनकी मास्टरी है। दूसरा विषय छेड़ दो जिससे लोग विकास की बात नहीं करें। मैंने अपनी पहली ही बात में कहा क्या कारण है कि बंगाल पिछड़ रहा है, क्या कारण है कि गुजरात बढ़ रहा है। सिर्फ इतना था तो सोचो, जो बंगाल नेतृत्व करता था देश का, पूरे देश में यहाँ से आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से संदेश जाते थे। ना आध्यात्मिक संदेश है ना आर्थिक संदेश है। तो क्या कारण है कि हमारी संस्कृति को क्षतविक्षत किया जा रहा है? क्या कारण है कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है? क्यों? इसका जवाब देना ममता जी। ये कृषि बिल का जो मुद्दा है इसको लेकर, कृषि बिल का जो मुद्दा है इसको लेकर कैसे प्रचार में लाएंगे? ये तो देखिए, जो भी अच्छा बिल, कोई बैकफुट पे नहीं है, फ्रंट फुट पे बोल रहे हैं हम। जो भी अच्छा काम होता है ये लोग विरोध करते हैं। हम सीए लेके आए, इन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियों के कागज दिखाने पड़ेंगे। अगर 3 पीढ़ी के कागज नहीं दिखाएंगे तो ये पाकिस्तान भेज देंगे। अब सीए में कोई कागज मांग रहा है कि 3 पीढ़ियों के? कोई पाकिस्तान गया क्या? कृषि बिल पे भी कमोबेश ऐसा ही कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी। न तो मंडियां बंद होने वाली है, न एमएसपी बंद होने वाली है। ये भ्रम फैलाने की कोशिश है।
जैसे ही किसान की समझ में ये आएगा, ये फिर दूर हो जाएंगे लोग इससे। ये सिर्फ ऐसे ही भ्रम फैलाते हैं। कितने तरह के हास्य और व्यंग्य के चुटकुले आ रहे थे उस समय जब सीए आया था। बोले अब्बू के वसीयत के कागज बकरी खा गई, बकरी को अब्बू खा गए, अब कागज कहाँ से लाएंगे, ऐसी बातें करते थे। ये हास्य और व्यंग्य की बातें करके बरगलाने की कोशिश करते थे। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्र को नौछावर कर चुका हो, नरेंद्र भाई मोदी, वो कैसे ऐसा कानून लाएगा जो देश विरोधी होगा? एक सोचने वाली बात है। जो अपनी माता से भी ऊपर भारत माता को मानता हो, वो कैसे ऐसा कानून लाएगा जो व्यक्ति विरोधी हो? इसलिए ये भ्रम है। आप सब मीडिया के माध्यम से ही हम इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बाल माफिया, बाली माफिया लेकर ये तो उन्होंने भाई पाल और पोस रही है ना ममता जी। राजनीतिक संरक्षण भूमाफिया को प्राप्त है, खनिज माफिया को प्राप्त है, रियल एस्टेट के माफियाओं को प्राप्त है, और ये सारे के सारे उनकी सरपरस्ती में है ममता बनर्जी की। हम कितना खुला आरोप। क्या वार्ता देंगे आज चाय पे चर्चा में? मैं प्रार्थना करूंगा, मैं विनती करूंगा, जाएगा बीचेगा, इसमें विरोध क्यों कर रहे हैं? भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय श्री রাম! দেখুন, লোকসভা নির্বাচনে পাণ্ডবেশ্বরে জিতেন্দ্র তেওয়ারি তাকে গোয়ারা হেরেছেন। আজ কয়েকদিন আগে যেভাবে মিছিল হয়েছে, হাজার হাজার মানুষ মিছিলে যোগদান করেছেন, সেই দিকে তেওয়ারি আতঙ্কিত হয়ে গেছেন, ভয় পেয়ে গেছেন। সেই জন্য বিজেপি কর্মীদের বিদ্যুৎ কাটা হচ্ছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ কেটে পরে, কেস দিয়ে পরে বিজেপি রোখা যায়নি, আগামী দিন যাবে না। 2021 নির্বাচন আসছে, এই নির্বাচনে বিজেপি বিপুলভাবে জয়লাভ করবে। জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে আমি চ্যালেঞ্জে এসেছি যে ওখানে পঞ্চায়েতে ভোটে মানুষ হারাবে, সেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে বিজেপি ওই লাইন কাটা হচ্ছে। এই লাইন কেটে পরে আটকানো যাবে না। আমাদের কর্মীরা কাল ঘেরাও করেছেন, বিক্ষোভ করেছেন, আজকে ভয়ে পড়ে সেই লাইনও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই জন্য এরকম চলবে। 6 মাস বাকি আছে, 6 মাসের মধ্যে যা করা করে নিন। বাংলার মানুষ ঠিক করে নিয়েছে, বিজেপি ক্ষমতা আসছে, বিজেপি ক্ষমতা এলে বাংলা শান্তি ফিরবে, শৃঙ্খলা ফিরবে, বাংলা উন্নতি হবে। এই জিতেন্দ্র তেওয়ারির কি পরিকল্পনা এই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন? আজকে বলুন, তিনি বিধায়ক আছেন, তার আঙুলি হিলনে সব হচ্ছে। তিনি যদি না বলেন, কারো ক্ষমতা আছে বিদ্যুৎ লাইন কেটে দেবে? অর্থাৎ বিজেপি করার জন্যে, বিজেপি মিছিল আসার জন্য গাঁজা কেস, রেপ কেস দেওয়া হচ্ছে আর লাইন কেটে দেওয়া হচ্ছে। নতুন কিছু নয়, সারা জেলা জুড়ে চলছে, বাংলা জুড়ে চলছে, খুন হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে। আর আমাদের 6 মাস বাকি, 6 মাস পরে বাংলায় পরিবর্তন আসছে, বিজেপি সরকার হবে, বাংলা শান্তি পেবে, বাংলা উন্নয়ন হবে।